الہ الا اللہ، پھر محمد رسول اللہ، پھر علی ولی اللہ۔ ابھی دنیا ولایت پہ کیا ہے، ابھی تو دنیا توحید کو نہ سمجھ، اور اعتراض ہم نے کر دیا نصیری یہ ہیں، یہ غالی ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ توحید نہیں ممبر پہ پڑھتے، انہیں توحید پڑھنی نہیں آتی، یہ زمانے کو توحید نہیں سناتے۔ ہمیں نصیری غالی مشرک کہنے کی بجائے ہمارے گلے میں پھولوں کی ہار ڈالا کرو۔ تمہارے پاس علی جیسا ایک بھی ہوتا تم کب کے مشرک ہو جاتے۔ بسم اللہ۔ زمانے کے پاس ایک ہوتا نا جی، بندے مشرک ہو جاتے۔ ہمارے پاس 12 علی ہیں، ہم پھر بھی اس سے سجدہ کر رہے ہیں۔ ہم نے توحید بت پرستوں سے سیکھی ہے، ہمیں توحید علی نے سکھائی ہے۔ ہمیں علی کی جھکتی ہوئی پیشانی نے بتایا ہے کہ کوئی ہے۔ ہم نے اللہ دیکھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں، دیکھنا چاہا ہی نہیں، بس علی نے کہا ہے۔ ہم نے کہا ان چودہ نے کہا نا ہے، آج ساری دنیا کے مسلمان کہتے ہے اشہد ان لا، میں گواہی دیتا ہوں وہ ہے۔ تو نے گواہی کیسے دی؟ گواہی تو آنکھوں سے دیکھی ہوتی ہے۔ کہتے ہم نے گواہی دی ہے ان کی زبان کے اقرار کو، انہوں نے کہا ہے تو ہم نے کہا ہے۔ پھر میری سمجھ میں نہیں آتا جن کے کہنے پہ تو نے ان کی گواہی دے دی ہے، انہوں نے ہے کہا اور تو نے گواہی دے دی اور تیری گواہی ہو گئی۔ جن کی ہے پہ گواہی ہو جاتی ہے ان کی اپنی باتیں ہوتی ہے۔ توحید کی گواہی ان کی گواہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے تو ہم نے کہا ہے، سامنے تو وہ آیا ہی نہیں، نظر تو وہ آتا ہی نہیں۔ ہم بھی آل محمد کو اللہ نہیں کہتے، میں ملتان میں یہ عقیدہ واضح کر دوں، ہم قطعاً کبھی بھی آل محمد کو اللہ نہیں کہتے۔ میں نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے جملہ کہتا ہوں، زمین پہ سورج نہیں آتا، سورج کی کرنیں آتی ہیں، کرنیں سورج نہیں، سورج کا اثر ہے، 14 اللہ نہیں۔ جس بندے نے ساتھ لایا وہ ضرور کیا، میں تو بڑے دھیمے لہجے میں سمجھا رہا ہوں۔ 14 اللہ نہیں، جیسے بغیر کرنوں کے سورج پہچانا نہیں جاتا، بغیر ان کے اللہ بھی پہچانا نہیں جاتا۔ کرنیں سورج ہی سے ظاہر ہوتی ہیں، سورج ہی میں چھپ جاتی ہیں۔ تھوڑے بندے رہ گئے، عقیدے والے رہ گئے۔ یہ علیحدہ سے نہیں ہوتی، یہ سورج سے نکلتی ہیں، صادر بھی سورج سے، غروب بھی سورج سے۔ زمین والے سورج نہیں دیکھتے، کرنیں دیکھتے ہیں۔ کرن بتاتی ہے کہ سورج آ چکا ہے، ہلکا سا کرٹن، ہلکا سا پردہ ہٹاؤ، پہلی کرن کمرے میں آتی ہے، سورج وہ بہت دور، اس نے آگے بتایا کہ سورج ہے۔ بڑی آسان مثال سے یوں دل کے اندر گھس کے نکل جاؤں گا، پھر تھوڑی دیر بعد پھر وہی دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ اندھیرا سا گیا، اس نے کرٹن ہلا کے آسمان کی طرف نہیں دیکھا، اس نے نہیں دیکھا، اسے پتا چلا کہ اگر کرن چلی گئی ہے تو سورج چلا گیا ہے، اگر کرن آ گئی ہے تو سورج آ گیا ہے۔ اس ممبر میں کتابیں ڈھیر نہ ہو، مجھے ملتان شہر سے نکل دینا، مرضی کا چور موٹا کر لینا، میں اپنی گردن کا لہو نہ دے کے جاؤں گا، تیرا نہیں میں زہرا کا مجرم ہوں۔ آل محمد اللہ کا اثر ہے، علی کو جہاں سے نکالنا سوچ کے نکالنا، جہاں سے علی چلا جائے وہاں سے اللہ چلا جاتا۔
है? अल्लाह है। इनका इकरार तौहीद का इकरार, इनको मानना, अल्लाह को मानना, ये हुज्जत है उसकी, ये अल्लाह की हुज्जत है। अब हुज्जत लफ्ज जो है इसको भी मानवी अंदाज से ना पढ़ा गया। अल्लाह की हुज्जत, हुज्जत या दलील, अहले इल्म तशरीफ फरमा है मंतक के यहाँ दो लफ्ज पाए जाते हैं, एक होता है मालूम, एक होता है मजहूल। या कोई चीज मालूम में होती है, अगर वो मालूम में ना हो मजहूल में होती है। ये मंतक का कानून है। मंतक कहती है कि या चीज मालूम में है या मजहूल में है। मसलन मैं अभी मिंबर से एक परिंदे का नाम लूं, मैं कहूं कबूतर, मजमे से किसी बंदे ने मुझसे उठ के नहीं पूछा कि ये क्या है, इसका मतलब ये आपके मालूम में है। मुझे कोई वजाहत नहीं करनी पड़ी कि कद कितना है, रेंगता है या उड़ता है, चरता है, खाता है, हर एक जहन में उसकी तस्वीर उभर आई। इसका मतलब मैंने सिर्फ नाम लिया, आपके मालूम में दस्तक हुई, आंखों के सामने तस्वीर आ गई, ये चीज आपके मालूम में थी। मैं अभी मिंबर से दूसरा नाम लूं, मैं कहूं फरिश्ता, दिखाओ किसके पास तस्वीर है। मुझसे ये किसी ने नहीं पूछा कि कैसा है, उन्हें ये पता है कि है, लेकिन इससे भी नहीं पता कैसा है। इसका मतलब जो चीज तस्दीक रखे तस्वीर ना रखे वो मजबूर होती है, जिसकी तस्दीक भी हो तस्वीर भी हो वो मालूम होती है। अब मैं हुज्जत की तारीफ करने लगा हूँ, मुल्तान में मुझे दुख होगा कि इनकी लोग बैठे हैं, अगर इस तारीफ के आगे भी फिर आपको कुछ और बताने की जहमत से मुझे गुजरना पड़ा। हुज्जत किसे कहते हैं? जब मजबूर को मालूम करके दिखाए उसे हुज्जत कहते हैं। जो ना नजर आने वालों को नजरों में लाके दिखा दे, इन्हें इसलिए हुज्जतुल्लाह कहते हैं। ये अल्लाह की हुज्जत है, वो नजर नहीं आता था, इन्होंने बताया है कि है। इनका इकरार अल्लाह का इकरार, अली वलीउल्लाह असल में तौहीद का इकरार, रिसालत का इकरार। इसलिए कि आज तक ये है अली वलीउल्लाह पढ़ने का फायदा। पिछले दिनों में मुल्क में एक फजा फैली, सोशल मीडिया पर खबरें फैल गई कि जी नबूवत का अकीदा, नबूवत मुसलमान बच्चों का ठीक होना चाहिए। कभी कहीं से कोई सेमिनार, कहीं कॉन्फ्रेंस, जुम्मे के खुतबे, कहानियां मुसलमानों के बच्चों को बार बार सुनाई, नहीं बेटा नबी के बाद कोई नबी नहीं, नबी के बाद कोई नबी नहीं, नबी के बाद कोई नबी नहीं। क्योंकि अब दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है। एक नौजवान अपने हथेली पे कायनात उठा के फिर रहा है, कायनात की लाइब्रेरियां उसकी उंगलियों के नीचे हैं। वो जहां चाहे जब चाहे जिस मर्जी मजहब को पढ़ सकता है, जो मजहब जब चाहे जिस वक्त चाहे उसकी हथेली पे तुलू हो सकता है। आए दिन कभी कहीं से कोई वीडियो, फला नबी बन गया, फलाने नबूवत का दावा कर दिया, मुसलमान परेशान हो गए। उस वक्त मैंने शिया कौम की तर्जमानी करते हुए इस मुल्क के हर मिंबर पे कहा था, आज सड़कों पे ना हो, एहतजाज ना करो, बिल ना पार्लियामेंट में पेश करो, तुमसे गलती हो गई है, तुमने देर कर दी है, तुम किताबों में लिख चुके हो कि नबी ने कहा था कि मेरे बाद नबी होता। ये लिखी है ना, अब ये हदीस लिखी है, भूल दो, अब तुमने लिख दी है, भूल दो। अब कोई वहीं से नबूवत का दावा, कोई वहां से नबूवत का दावा, वहां से नबूवत का दावा। अब या तो लिटरेचर बदलो, या सिलेबस बदलो, दिन याद बदलो, इस्लाम याद बदलो। अगर तुम्हें देर कर दिया तो ये शिया मजहब की हकानियत है। हम अपने बच्चे को पैदा होते ही कहा अली सुना के सारी जिंदगी विलायत अली में पैदा करवा के उसे कहते बेटा सारी जिंदगी अली को ना छोड़ना, ताकि दुनिया को बता सको जब मैं अली को नबी नहीं मानता किसी कमी को कैसे मान सकता। जब मैं अली को नबी करके लाऊंगा, पढ़ने का फायदा। बिस्मिल्लाह। इनका इकरार वहदत का इकरार है। नौजवान तबके को समझाने के लिए बात आसान करूं,
इनके पीछे तौहीद का इकरार छुपा हुआ। ये जो पानी जिसे हम पीते हैं, साइंस कहती है ये दो गैसों का मजमूआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलती है तो पानी बनता है। वो नजर नहीं आ रही। नजर पानी आया, प्यास पानी ने बुझाई, जबकि पानी ने बताया कि मैं मुरक्कब हूं, मेरे पीछे दो हैं, वो नजर नहीं आएंगे। मुझे मानना, अगर बंदे चाहें तो हम अपना पूरा मजहब, सारी किताबें उठा लो, तफसीर उठा लो, तारीख उठा लो, हदीस उठा लो। मैं इमाम हुसैन का सबसे छोटा जाकर हूं, मुझे बुलाओ, मैं तुम्हें साइंस में से आले मोहम्मद दिखाऊं। मर्जी के झूठे रावी से पूछना है कि मजहब क्या है। दुनिया का अलूम जो है वो मजहब आले मोहम्मद पे गवाही देगा। आज के माहरीन फल्कियात ने इस बात को तस्लीम किया। उन्होंने कहा कि ये जो सूरज की किरण है ना, ये सूरज से निकलती है, उसने कहा ये सूरज से निकल के जमीन पे पहुंचती है तो सूरज के तलू होने से और किरण के पहुंचने में उनका दौरानिया है 9 मिनट का। आज के माहरीन फल्कियात ये कहते हैं कि सूरज तलू पहले हो जाता है, 9 मिनट बाद नजर आता है। इसलिए कि जो किरण है उसे सूरज से निकल के जमीन तक पहुंचने के लिए सिर्फ इस दुनिया के, इस गोले के 9 मिनट दरकार है, जिसे वो लाइट ईयर बोलते हैं। वो कहते 2,46,000 मील फी सेकंड है जो सफर इसने करना है। ये 9 मिनट में यहां पहुंचती है। जब तक ये यहां नहीं पहुंचती, यहां वालों को नहीं पता होता कि सूरज आ चुका है, जबकि वो 9 मिनट पहले आ चुका होता है। और वही माहरीन फल्कियात कहते, जाके गूगल पे सर्च करके देखना, वही माहरीन फल्कियात कहते हैं सूरज गरूब पहले हो जाता है, 9 मिनट तक नजर आता रहता है। इसलिए कि किरण दुनिया में मौजूद रहती है। जब वो दुनिया से निकल के फिर वापस जाकर सूरज के दामन में छुपती है, तब तक जमाना यही समझता है कि सूरज है, जबकि वो जा चुका होता है। जमाने में सिर्फ किरण होती है, दुनिया में सिर्फ शुआ होती है। ये फासला होता है 9 मिनट का। अभी हम तुम्हें बताएं कि हम 10 मिनट बाद रोजा की इफ्तार करें। अभी हम तुम्हें हमारे सहनो अफ्तार का ताल्लुक सूरज से है, किरणों से नहीं। और खुदा ने कुरान में कहा शम्स व ज़ुहा, मुझे सूरज की कसम और उसकी किरण की कसम। सही बुखारी यहां मिंबर पे लेके आओ, मिशकात यहां रखो, तिरमिज़ी यहां रखो। मैं यहां से हदीस निकाल के दिखाता हूं, रसूल की हदीस अहले सुन्नत लिखी है। रसूल ने कहा अना का शम्स, ये जो खुदा ने कुरान में सूरज कहा ये मैं हूं। अल्लाह कुरान में कहता मुझे सूरज की कसम और उसकी किरण की कसम, मुल्तान में शिकस्ता दिल लेके लाऊंगा। खुदा ने कुरान मुझे सूरज की कसम, किरण की कसम। नबी कहते सूरज मैं हूं, बेटियां 4 होती तो किरण 1